Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with types of sampling. So starting with types of sampling, आपको पता होना चाहिए sampling क्या होता है. So the sampling method or sampling technique is the process of studying the population by gathering information and analyzing the data. Okay, it is the basis of the data where the sample space is enormous. यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट सैंपल्स को, डिफरेंट डेटास को कलेक्ट किया जाता है. करेक्ट. सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड. तो इन स्टैटिक्स देयर आर डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स मेथड्स या सैम्पलिंग मेथड्स अवेलेबल टू गेट रिलेवेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन. ओके, so the two different types of sampling methods are actually sampling method is divided into two groups, which is probability sampling method and second one is non-probability sampling method. So probability sampling method is further divided into four subgroups. First one is simple random sampling, second is clustered sampling, third one is systematic sampling, and fourth one is stratified random sampling. And non-probability sampling is further divided into five subgroups. So first one is convenience sampling, second is consecutive sampling, and third one is quota sampling, fourth one is judgmental sampling, and fifth one is snowball sampling. So starting with what is probability sampling. Probability sampling क्या होता है या probability sampling क्या है? The probability sampling method utilizes some form of random selection. In this method, all the eligible individuals have a chance to selecting the sample from the whole sample space. इस probability sampling में क्या होता है, एक eligible candidate को या एक eligible individual को भी chance मिलता है डेटा में से sample collect करने का. Okay, so क्या होता है? So this method is more time consuming. आपको मैंने कल भी यही चीज बताई थी कि ये more time consuming होता है, more expensive होता है than non probability sampling method. अगर हम कंपेयर करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड ज्यादा टाइम लेता है और ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट इट जनरेट्स या ये क्या करता है, गारंटी देता है दैट द सैंपल दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. सो नेक्स्ट है, हम इसमें फर्स्ट देखते हैं. इसके पहले क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम देखते हैं. तो इसमें आपको बताना चाहती हूँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स क्या होता है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स होता है, ये एक मेथड होता है या फिर एक टेक्निक होती है, और फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. आपको जैसे मैंने अभी बताया, सच एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एक्सेट्रा. ठीक है. सो अगर हम अभी देखते हैं, लेट अस डिस्कस द different types of probability sampling method along with the illustrative examples here in detail. So first one is simple random sampling. First क्या है, simple random sampling है. In simple random sampling technique, every item in the population has a equal and likely chance to being selected in the sample. ठीक है. इसमें क्या होता है, हर एक को इंडिविजुअल को चांस मिलता है सेलेक्ट करने का. Since the item selection entirely depend on the chance, ये डिपेंड करता है चांस पे. दिस मेथड इज नोन एज, इस मेथड को मेथड ऑफ चांस सिलेक्शन भी कहा जाता है. एज द सैंपल साइज इज लार्ज, क्योंकि इसका सैंपल साइज जो होता है वो लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है. एंड द आइटम इज चूजन रैंडमली, इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग. जो आइटम रैंडमली चूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग. ठीक है. तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. Suppose we want to select a simple random. हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं. ठीक है. क्या करेंगे हम, we want to select a simple random sample of 200 students from a school, college, anywhere. Here we can assign a number to every student. हम क्या करेंगे, 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं. हमको 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करने के लिए हम 500 स्टूडेंट्स लेंगे और उसमें से हर एक बच्चे को नंबर देंगे. ठीक है. Here we can assign a number to every student in the school database from 1 to 500. हमने 1 to 500 बच्चों को नंबर दिया. use a random number generator. Select a sample of 200. अब उसमें से randomly हम लेंगे, उसमें से 200 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं. This is what simple random sampling is. नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है?
इन द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड द आइटम आर सेलेक्टेड फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें आइटम सेलेक्ट किया जाता है वो टारगेट पॉपुलेशन के थ्रू किया जाता है बाय सेलेक्टिंग द रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन के बाद पॉइंट एंड सेलेक्टिंग द अदर मेथड आफ्टर अ फिक्स्ड सिंपल सैंपल इंटरवल। ओके, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन साइज। ये क्या किया जाता है, टोटल पॉपुलेशन साइज से कैलकुलेट करके डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड पॉपुलेशन साइज, ठीक है, इसे एक्चुअली डिवाइड किया जाता है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज द नेम्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर सॉर्टेड। 300 स्टूडेंट्स किसी स्कूल के हमने सॉर्ट आउट किया इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विच इज Z to A, ठीक है, टू सेलेक्ट अ सैंपल इन अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। अब हम इसमें क्या करेंगे, वी हैव टू चूज सम 15 स्टूडेंट्स, इसमें से हमें 15 स्टूडेंट्स चूज करना है बाय रैंडमली सेलेक्टिंग अ स्टार्टिंग नंबर, कोई भी बीच में से रैंडम से 5, ठीक है, फ्रॉम नंबर 5 ऑनवर्ड्स विल 10 देन 15, तो ऐसे करके हम विल सेलेक्ट एवरी 15th पर्सन फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट, हम हर 15वें बच्चे को उठाएंगे। फाइनली वी कैन एंड अप विद द सैंपल ऑफ सम स्टूडेंट, हमें फिर कुछ स्टूडेंट का सैंपल मिलेगा, वो सैंपल क्या होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये एक सिस्टम फॉलो करते हुए किया गया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, इन अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड द टोटल पॉपुलेशन is divided into smaller groups of to complete the sample process। इस सैम्पलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द स्मॉल ग्रुप इज फाउंड बेस्ड, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं वो किस बेसिस पर बनते हैं, ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन। आफ्टर सेपरेटिंग द पॉपुलेशन इनटू अ स्मॉलर ग्रुप द स्ट्रैटिफिकेशन द स्टैटिस्टिशियन रैंडमली सेलेक्ट द सैंपल, वो सडनली रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, देयर आर 3 बैग्स A, B एंड C, हमने 3 बैग्स लिया है A, B और C, ईच विद अ डिफरेंट बॉल्स, सब में अलग अलग बॉल्स डली हुई है। बैग A हैज 50 बॉल्स, पहले बैग में 50 बॉल्स है, बैग B में 100 बॉल्स है, एंड थर्ड वन विच इज C हैज 200 बॉल्स। वी हैव टू चूज अ सैंपल ऑफ बॉल्स फ्रॉम ईच बैग, हमें क्या करना है, हर सैंपल में से कुछ बॉल चूज करनी, कुछ सेलेक्ट करनी है, ठीक है, प्रोपोर्शनली। सपोज 5 बॉल्स फ्रॉम बैग A, 10 बॉल्स फ्रॉम बैग B एंड 20 बॉल्स फ्रॉम बैग C। ये क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सो नेक्स्ट इज clustered sampling. So what is clustered sampling? In the clustered sampling method, the cluster or group, cluster क्या होता है, ये group होता है, of a people are formed from the population set, एक group of population या एक set of population से ये बनता है। The group has similar significatory characteristics. ओके, हर ग्रुप का अपना अपना एक सिमिलर सिग्निफिकेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऑल्सो दे हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द सैंपल, सबके पास बराबर चांस होता है इस सैंपल का में पार्ट लेने के लिए। दिस मेथड यूजेस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर द क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, an educational institution has 10 branches across the country with almost the number of students, ठीक है। if we want to collect some data regarding facilities and other things, अगर हम facilities के regarding या other things के regarding data collect करते हैं, we cannot travel to every unit to collect the required data, हमें हर यूनिट में जा करके डेटा कलेक्ट नहीं करना है, जो कलेक्ट वहां पे डेटा है उसे कलेक्ट नहीं करना है। hence we can use random sampling, हम क्या करेंगे, जो पहले सैम्पलिंग मेथड था रैंडम सैम्पलिंग, पहले करेंगे टू सेलेक्ट 3 और 4 ब्रांचेस और एस क्लस्टर और ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, जो मैंने आपको अभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बताया है। अब देख सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कैसे उन्होंने सेलेक्ट किया है। ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सिंपल रैंडम। अब हमने क्या किया, इसमें से 2 सेलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद फिर 8 सेलेक्ट किया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया है, टोटल 2 5 8 10, ठीक। वैसे ही हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें हमने क्या किया है, पूरे सबको नंबर दे दिया है ना। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे हुआ है, सिस्टमैटिक, मतलब 2 ले लिया हमने, देन हमने 5 लिया, देन 8, क्लियर है। देन थर्ड वन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। तो आपको ये चीज क्लियर दिख रही होगी स्ट्रैटिफाइड में कैसे उसने स्ट्रैटिफाई किया है सब सैंपल्स को। देन क्लस्टर्ड सैम्पलिंग मेथड 1 2 3 4 5 6, ये क्या किया है 5 2 4 5 6, है ना। तो उसने क्या किया, रैंडमली सेलेक्ट किया 5, ये क्या है क्लस्टर्ड क्लम्प्ड एरिया में, ठीक है। देन क्या है 6 11 12, तो ये समझ में आया।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज अ टेक्निक, ये एक मेथड भी है, टेक्निक भी है, इन विच द रिसर्चर या स्कॉलर सेलेक्ट द सैंपल बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक या सब्जेक्टिव जजमेंट rather than the random selection. वो randomly select नहीं करेगा. In this method, not all the members of population have a chance to participate in the study. इस method में हर members को नहीं मिलता है, participate करने का chance नहीं मिलता है, लेकिन जब हम probability sampling का बात करते हैं, उसमें हर individual को participate करने का मौका मिलता है. So हम देखते हैं non probability sampling को आगे. तो इसके आगे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आता क्या है, हमें इसे बताना पड़ेगा सैम्पलिंग मेथड जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, जो कि हमने बताया हुआ है आपको, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड और कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग मेथड एक्सेट्रा. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी, non-probability sampling in detail. So first one is convenience sampling. अब convenience sampling में आप समझ सकते हैं कि सामने वाले को convince करना. In a convenience sampling method, the samples are selected from the population clearly या directly. ठीक है, या तो clearly या directly, because they are conveniently available for the researcher, जो कि researcher के convenience से available है. The sample are easy to select. यहाँ पे जो सैंपल्स होते हैं वो इजी होते हैं सेलेक्ट करने के लिए, एंड द रिसर्चर डिड नॉट चूज द सैंपल दैट आउटलाइंस द एंटायर पॉपुलेशन. ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता. ठीक है, सो हम इसका एग्जांपल देखते हैं. इन रिसर्चिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस इन अ पर्टिकुलर रीजन. देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब आपको कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट सेल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाएंगे, जब उसका कन्वीनियंट है तब हम उसे वो प्रोडक्ट देंगे. इससे क्या होगा, वो स्प्रेड होगा. तो ये क्या हुआ, कन्वीनियंट सैम्पलिंग. तो नेक्स्ट इज है consecutive sampling. ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग में इज सिमिलर टू कन्वीनियंट सैम्पलिंग विथ स्लाइट वेरिएशन. ये थोड़ा वेरिएशन के साथ में, ये कन्वीनियंस के साथ में ही मैच होता है. ये एक्चुअल में वही है बट थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है. द रिसर्चर पिक्स अ सिंगल पर्सन. इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो एक सिंगल पर्सन चूज करता है और अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सैम्पलिंग. ठीक है, या तो वो एक सिंगल पर्सन चूज करेगा या एक पूरा ग्रुप चूज करेगा. देन द रिसर्चर रिसर्चेस, वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम जो डिसाइडेड रहेगा, टू एनालाइज द रिजल्ट. ठीक है, एंड मूव टू अनदर ग्रुप इफ नीडेड. पहले वो एक ग्रुप बनाएगा, उसमें एनालाइज करेगा, अगर उसे लगेगा कि ये प्रॉपर नहीं है या इसका रिजल्ट मुझे सही नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट ग्रुप सेलेक्ट करेगा. सो देखते हैं कोटा सैम्पलिंग. सो व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? इन द कोटा सैम्पलिंग मेथड द रिसर्चर फॉर्म अ सिंपल दैट इन्वॉल्व्स द इंडिविजुअल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. ठीक है, जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ट्रेट्स और क्वालिटीज. ठीक है, द रिसर्चर चूजेस द सैंपल सबसेट्स. रिसर्चर क्या करेगा, वो सैंपल के सबसेट्स को चूज करेगा दैट ब्रिंग्स द यूजफुल कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, जो उसे यूजफुल कलेक्शन ऑफ डेटा देगा, दैट जनरलाइज द एंटायर पॉपुलेशन, जो कि पूरी एंटायर पॉपुलेशन को जनरलाइज करता है. नेक्स्ट है यहाँ पे पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग. अगर हम इसे देखते हैं तो इन द पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग हम जिसे कहते हैं, द सैंपल्स आर सेलेक्टेड. ये सैंपल्स आर सेलेक्टेड ओनली किसके थ्रू, बेस्ड ऑन द रिसर्चर नॉलेज. जो रिसर्च करता है, जो रिसर्च कर रहा है, सिर्फ उसके नॉलेज पे बेस्ड जो सैंपल है. ठीक है, एज देयर नॉलेज इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द सैंपल्स. अगर उसका नॉलेज इंस्ट्रूमेंटल है ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन. ठीक है, देयर आर द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग हाईली एक्यूरेट आंसर. यहाँ पर होता है एकदम हाईली एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस विद इन अ मैक्सिमम मार्जिनल एरर. बहुत कम एरर मिलता है उसमें, मतलब एक लाइन वाइज हम बोल सकते हैं. इट इज नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर हम इसे बोल सकते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग. सो नेक्स्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज चेन स्नोबॉल सैम्पलिंग, chain referral sampling techniques. ठीक है, in this method the samples have traits that are difficult to find. हम क्या, इसमें क्या होता है, जो difficult होता है, चूज करने के लिए difficult होता है. So each identified number of population is asked to find. So each identified member of population is asked to find the other sampling unit. Those sampling unit also belong to the same targeted population. ये same targeted population से belong करती है. अब हम देखते हैं next, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. ठीक है,
तो द बिलो टेबल जो यहाँ पे शो हो रही है आपको, फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो ये हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच सैंपल्स टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन और चूजन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सैंपल्स लिए जाते हैं वो लार्जर पॉपुलेशन से चूज की जाती है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज द टेक्निक इन विच द रिसर्चर चूज सैंपल्स। ये इसमें क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करने वाला है, वही इस सैंपल को चूज करेगा बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट जजमेंट्स, सब्जेक्टिव जजमेंट्स, ठीक है, जो उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। प्रेफरेबल रैंडम सिलेक्शन, इसमें क्या करेगा, वो रैंडम सिलेक्शन को प्रेफर करता है। हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में, दीज आर आल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड बोल सकते हैं। सो दीज आर यूज फॉर रिसर्च विच इज कंक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, ये यूज किया जाता है रिसर्च में जो कि कंकल्सिव होता है, बट these are used for research which is exploratory। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में जो रिसर्च यूज किया जाता है वो क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी होता है। दिस इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट डेटा। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम भी लगता है और एक्सपेंस भी लगता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में पैसे भी कम लगते हैं और टाइम भी कम लगता है। सो दिस इज ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। So thanks for today. नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरे टॉपिक के साथ आती हूँ। थैंक यू।